Good morning, students. I am Simta from JPPS. Student, today we start question number 6 of chapter of exercise 9.1, chapter 9, application of trigonometry. In previous video, we discuss about question 1 to 5th of exercise 9.1. Today we start question number 6 of exercise 9.1. Question 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 to 60 degree as he walk towards the building. Student, suppose AB is any building. AB is any building. Height of building is 30 meter. Height of building is 30 meter. It means height of AB is 30 meter. CD and a boy. Suppose CD is a boy whose height is 1.5 meter. CD is a boy whose height is 1.5 meter, and distance between boy and building is BD. Distance between boy and building is BD. Boy see the top of building. Boy ने क्या किया? बिल्डिंग के टॉप को सीन किया. एंगल ऑफ इवेल्यूशन इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ इवेल्यूशन क्या आपके पास 30 डिग्री. इट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री. आफ्टर सम टाइम बॉय मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग. स्टूडेंट, बॉय क्या है? सीढ़ी है. सीढ़ी बॉय क्या हो रहा है? बिल्डिंग के टुवर्ड्स मूव कर रहा है. सो आफ्टर टाइम पोजिशन ऑफ बॉय इज EF. After some time, position of boy is EF, and boy make an angle 60 degree to the top of building. That is, this angle is 60 degree. स्टूडेंट, AB आपके पास बिल्डिंग गिवन है. CD हाइट ऑफ बॉय गिवन है. स्टार्टिंग में बॉय की पोजीशन जो क्या है वो क्या है? सीढ़ी है. बॉय ने क्या किया? टॉप ऑफ बिल्डिंग को सीन किया. एंगल ऑफ इवेल्यूशन कितना है? 30 डिग्री. आफ्टर सम टाइम बॉयज़ की जो पोजीशन है वो क्या हो गई? EF हो गई. एंगल ऑफ इवेल्यूशन क्या है आपके पास? 60 डिग्री है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग. इट मीन्स बॉय ने बिल्डिंग के टुवर्ड्स जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो डिस्टेंस कवर की है, आपको फाइंड करनी है. स्टूडेंट, सी हेयर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ CD, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ बॉय इज CD, एंड आफ्टर पोजीशन बॉय इज EF. स्टार्टिंग में बॉयज़ की पोजीशन क्या आपके पास? CD है. आफ्टर टाइम पोजीशन क्या हो गया? पास EF हो गई. सो बॉय ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है आपके पास? DF है. DF इज डिस्टेंस कवर बाय द बॉय. स्टूडेंट, वी फाइंड वैल्यू ऑफ DF. सी हेयर CDBG इज ए रेक्टेंगल. स्टूडेंट, आपके पास CDBG क्या फॉर्म हो रहा है? रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. CD की वैल्यू क्या है? 1.5. BG की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 1.5 मीटर.
स्टूडेंट ए बी इज़ 30 मीटर, आपके पास ए बी की वैल्यू क्या है 30 मीटर है। जी बी इज़ 1.5 मीटर, जी बी की वैल्यू क्या आपके पास 1.5 मीटर है। ए बी की वैल्यू 30 मीटर है, जी बी की वैल्यू क्या आपके पास 1.5 मीटर है। सो स्टूडेंट ए जी इज़, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए जी की। आपके पास ए बी क्या है 30 है, जी बी क्या है 1.5 है। सो ए जी इज़ 28.5, value of AG is 28.5. Students, see here we have triangle AGB, sorry AGE. Student, आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है AGE. So student, in triangle AGE, in triangle AGE, for angle 60, EG is base, for angle 60 EG is base, AG is perpendicular. एंगल 60 के लिए आपके पास EG क्या है बेस है, AG क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। सो स्टूडेंट tan 60 is AG upon EG. What is tan? Tan is perpendicular upon base. So tan 60 is AG upon GE. Value of tan 60 is square root 3. Value of tan 60 is square root 3. Value of AG is 28.5 upon EG. Student, easy in divide. So EG equal to 28.5 upon square root 3. Multiply both sides. So square root 3 into square root 3. EG equal to 28.5 into square root 3 upon 3. So student, value of AG is 28.5 square into square root 3 upon 3. Now student, a triangle AGC, a triangle is AGC is formed. For angle 30, AG is perpendicular, CG is base. एंगल 30 के लिए आपके पास AG क्या है परपेंडिकुलर है, CG is base. So in triangle AGC, tan 30 is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is AG. Sorry, tan 30 is perpendicular upon base. So tan 30 is AG upon GC. Tan 30 1 upon square root 3 AG. Value of AG is 28.5 upon GC. So student, GC is 28.5 square root 3. Student, we have value of GC. Value of GC is 28.5 square root 3. Value of EG is 28.5 square root 3 upon 3. But we find distance travel by boy. Student, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय. बॉयज ट्रेवल CE डिस्टेंस. सो CE इक्वल टू CG माइनस EG. आपको CE फाइंड करना है ना. CE कैन राइट CG माइनस EG. स्टूडेंट, आपको CE की वैल्यू फाइंड करनी है. सो CE कैन राइट CG माइनस GE. वैल्यू ऑफ CG is 28.5 square root 3. Value of EG is 28.5 square root 3 upon 3. 28.5 square root 3 common out. So 28.5 square root 3 common. 1 minus 1 upon 3. 28.5 square root 3. Take LCM. LCM is 3. 3 minus 1, which is 2. 28.5 square root 3 into 2 upon 3. Now 28.5 into 2.
28.5 into 2, when we multiply we find 57. स्टूडेंट आपने 28.5 एंड 2 के मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 57.0 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 विच इज 19.0 स्क्वायर रूट 3. सो स्टूडेंट बोए डिस्टेंस 19.19 रूट 3 मीटर डिस्टेंस. सो स्टूडेंट डिस्टेंस कवर बाय बॉय इज 90.90 root 3 meter. Now student, question 7 is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. Suppose student AB is any building. Height of building is 20 meter. Student आपके पास AB क्या है, बिल्डिंग गिवन है, height of building is 20 meter. On building a tower is fixed. आपने क्या किया हुआ है, बिल्डिंग पर आपने टावर फिक्स किया हुआ है. AB is any building, AC is any tower on building from a point on the ground. Student, suppose C is any point on the ground, D is any point on the ground. From D, angle of evaluation of the top of building, और बॉटम ऑफ टावर. स्टूडेंट आपने पॉइंट डी से टावर के बॉटम को चेक किया, आपके पास जो एंगल ऑफ इवैल्यूएशन है विच इज 45 डिग्री. फ्रॉम डी एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर इज 45 डिग्री. It means this is 45 degree. Same, from D, angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From D, angle of elevation of the top of tower is 60 degree. It is 60 degree. ये आपको गिवन है. फाइंड दी हाइट ऑफ टावर. स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है. स्टूडेंट सपोज ए बी इज एनी बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ ए बी इज एनी बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर. एट बिल्डिंग वी फिक्स ए टावर इज ए सी. फ्रॉम एनी पॉइंट डी ऑन ग्राउंड, डी इज एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड. From point D, angle of elevation of bottom of tower is 45 degree. आपने D से सीन किया. From D, angle of elevation of bottom of tower. Point D से टावर के जो बॉटम का एंगल है वो कितना है 45 डिग्री. सेम पॉइंट D से टावर के जो टॉप का एंगल है वो कितना है 60 डिग्री. फाइंड हाइट ऑफ टावर. आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है. इट मीन्स वी फाइंड वैल्यू ऑफ ए सी. स्टूडेंट वी हैव टू ट्राइंगल. फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी. इन दिस फिगर वी हैव टू ट्राइंगल. फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी. सो स्टूडेंट इन ट्राइंगल ए बी सी, angle D is 45. For angle 45 dB is base. For angle 45 dB is base. AB is perpendicular. Angle 45 के लिए आपके पास dB क्या है, base है, and AB क्या आपके पास perpendicular है. So student tan 45 is AB upon
BD. Tan 45 is AB upon BD. Value of tan 45 is 1. Value of AB is 20. Value of BD is BD. So student, BD equal to 20 meter. So student, length of BD is 20 meter. Now we have triangle CBD. Student, we have triangle CBD. For angle 60, BD is base. For angle 60, BD is base. BC is perpendicular. In triangle CBD, in triangle CBD, for angle 60, BD is base, BC is perpendicular. So tan 60 is BC upon BD. Value of tan 60 is square root 3. BC, we find BC. So BC can write, स्टूडेंट आपको BC है ना, BC can write AB plus AC. स्टूडेंट आप BC को कैन राइट कर सकते हो AB plus AC. So BC can write AB plus AC. Value of BD is 20. Now student, 20 divide, shift here, 20 will write. So 20 square root 3. Value of AB is 20 plus AC. Here 20 in positive, shift here 20 negative. Student, 20 कैसे है पॉजिटिव में, आपने शिफ्ट किया सो नेगेटिव. सो 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 20 इक्वल टू AC. सो स्टूडेंट, AC इक्वल टू 20 कॉमन आउट, सो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1. AC इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1. स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 इज 1.732. स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1.732. सो AC इक्वल टू 20, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 1.732 minus 1. So 20, 1.732 minus 1, it is 0.732. Multiply this, multiply करना है आपको, which is 14.64. So student, height of tower is 14.64 meter. This imply height of tower is 14.64 meter, which is answer. Now student, question number 8. Question number 8 is a statue 1.6 meter tall stand on the top of pedal stair. Student, आपके पास pedal stair given है. AB is any pedal stair. On pedal stair, we stand a statue which is 1.6 meter. AB is any pedal stair. On pedal stair, we stand a statue. Height of statue is 1.6 meter. It means AC is any statue. Height of statue is 1.6 meter. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. Student, this is point D. At point D, angle of elevation to the top of statue is 60 degree. It means आपने point D से एंगल C को ऑब्जर्व किया. स्टूडेंट, आपने पॉइंट D से एंगल ऑफ C को क्या किया, ऑब्जर्व किया. एंगल ऑफ C
is 60 डिग्री, एंगल ऑफ इवेल्युएशन इज 60 डिग्री। स्टूडेंट आप पॉइंट डी से पॉइंट सी को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड आपके पास एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 degree. Same, from the same point, it means at point D, from the same point, the angle of evaluation of the top of pedal stage is 45 degree. स्टूडेंट आपने पॉइंट डी से पॉइंट ए को ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने पॉइंट डी से पॉइंट ए को ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ इवेल्युएशन इज 45 डिग्री। इट मीन्स आपने पॉइंट डी से पॉइंट ए को ऑब्जर्व किया, दिस मेक 45 डिग्री एंगल, और आपके पास ये एंगल कितना मेक कर रहा है, 45 डिग्री। इट मीन्स इट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पैडल स्टेयर। स्टूडेंट वी फाइंड हाइट ऑफ पैडल स्टेयर। सपोज ए बी इज एनी पैडल स्टेयर, आपके पास ए बी क्या है, पैडल स्टेयर गिवन है। ए सी इज एनी स्टैचू, height of statue is 1.6 मीटर। स्टैचू स्टैंड ऑन पैडल स्टेयर। स्टैचू क्या स्टूडेंट आपके पास पैडल पे स्टैंड हो रहा है ऑन पॉइंट डी। डी इज एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड, डी क्या आपके पास ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ऑन पॉइंट डी एंगल ऑफ इवेल्युएशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। पॉइंट डी से आपने पॉइंट सी को ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट आपने पॉइंट डी से पॉइंट सी को ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ इवेल्युएशन इज 60 डिग्री। सेम आपने पॉइंट डी से टॉप ऑफ पैडल स्टेयर ऑब्जर्व कर रहे हो, इट मीन्स पॉइंट डी से आपने पॉइंट ए ऑब्जर्व किया, एंगल इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ इवेल्युएशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पैडल स्टेयर। इट मीन्स वी फाइंड height of AB, we find value of AB. Student, suppose height of pedal steel is h. Student, suppose height of pedal steel is h and distance between bottom of pedal steel and point of ground. Bottom of pedal steel and point of ground is x. So student, let height of pedal steel it means AB is h meter, AB is h meter and BD is x meter. स्टूडेंट आपने क्या सपोज किया, हाइट ऑफ पैडल स्टेयर, इट मीन्स ए बी इज एच मीटर एंड बी डी इज एक्स मीटर। स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ट्रायंगल ए बी डी, एंगल फॉर्म 45, आपके पास कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री। बी डी इज बेस, फॉर एंगल 45 डिग्री बी डी इज बेस, ए बी इज परपेंडिकुलर